So hello everyone, welcome back to all you board regulatory bodies. I hope that your preparation for RBI grade B as well as SEBI grade A is going fine. Now there is one more notification and we all didn't expected it, but yes, IFSCA grade A 2024, this notification is out. Now there is a really great opportunity for the students who are either preparing for RBI or maybe who have started preparing for SEBI. It is like with one stone you can shoot out at टू बर्ड्स. अभी ही मौका है कि आप हाथों हाथ, अगर आप आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप हाथों हाथ और एक एग्जाम दे सकते हो. सो दैट इज व्हाई हियर टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द ओवरऑल 60 days and how we can utilize them through a proper timetable. अगेन एक्सेल शीट का बहुत ही डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस which has been given for phase 1 IFSCA as well as phase 2 IFSCA, and that also for both the papers, paper 1 paper 2. ठीक है. Other than that we will also discuss how is the exam pattern different from RBI and SEBI, what should be your preparation strategy and what should be the roadmap for next 60 days considering कि exam of course आपका मई जून में होके रहेगा. So with this let's start our discussion. और मैं फिर से बताऊंगा, do not drop down in between. There are many things which we are going to discuss today. We'll also discuss the course which we have launched, a complete course. 60 days we are going to complete your overall syllabus for IFSCA, and I will also show you the overall timetable that how you can start your preparation from 1st of April also and still you can cover the syllabus. Because इस एग्जाम को अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यूज करोगे, if you break it down into small timetables, you will understand that individual topics can be covered on day-to-day basis and you can easily cover the whole syllabus for phase 1 also and phase 2 also. Let's jump into the overall exam pattern. Just understand, we all know what SEBI exam pattern is. Similarly, onto the lines of SEBI exam pattern, IFSC का exam pattern है. Whereas if you see some of the topics, IFSC has picked, वो cherry pick बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने cherry pick किया है from RBI as well as SEBI. So let's look into the exam pattern. We'll not directly go into the syllabus. पहले exam pattern देखते हैं. So phase 1 is there, phase 2 is there, and interview is there, similar like SEBI. Paper 1 MCQ type is there, and yes, we are having same 4 subjects, that is GA, English, quantitative aptitude and reasoning. 100 questions, 100 marks, 60 minutes are given. Now here overall this paper 1 whatever is there, we'll see it. We'll see paper 1, paper 2 for phase 1, individual phase 1, phase 2 also we'll see. Here just get an idea, it is similar to SEBI only, थोड़ा सा देख के आपको पता लग जाएगा. पेपर 2 MCQ टाइप है, लेकिन इस पेपर 2 में क्या क्या है? यस, SEBI में वहां पर जहां पर कंपनीज एक्ट होता है, यहां पर कंपनीज एक्ट नहीं है, तो क्या क्या चीजें हैं? सो जीके, योर करंट अफेयर्स इज देयर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज देयर. सो इट इज नॉट सोशल इश्यूज बट सोशल डेवलपमेंट, बट स्टिल यू कैन कंसिडर very much similarities of ESI and this economic and social development, इसलिए मैंने यहां पर ESI ही लिखा है. So आप कंसिडर कर सकते हो कि बहुत सारे टॉपिक्स जो ESI में होंगे RBI के, those will fall into this particular economic and social development. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है सेम सेबी जैसा ही. देन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, ये आप सेबी के लाइंस पर ही पढ़ सकते हो. हाँ, यस, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू मे have to do exhaustively for IFSCA. वो सिलेबस में आपको I'll show those topics to you. Then comes some extra parts such as Indian and global economy. ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस में पार्ट है. If you break it down, I will also show you multiple क्या और सब टॉपिक्स है इस मेजर टॉपिक के अंदर. 5 year plans, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके पेपर 2 फेज 1 में आते हैं. 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, ये आपका टोटल फेज 1 हो गया. Then comes phase 2. अब फेज 2 की बात करें तो पेपर 1 इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप, सिमिलर टू सेबी, जिसमें आता है प्रेसी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन. पेपर 2 एमसीक्यू टाइप अगर हम बोले तो यहां पर नाउ लाइक सेबी अगेन दो 6 सब्जेक्ट्स आर नॉट देयर. यहां पर आईएफएससीए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर रिलेटेड टू आईएफएससी हैव बीन गिवन हियर. व्हाट आर दिस? आईएफएससीए एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, बुलियन, IFSCA and GIFT City, global financial centers, etc. बहुत सारे रैंडम टॉपिक लगेंगे आपको, बट वी विल ब्रेक डाउन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी अबाउट इट. और फिर होता है आपका इंटरव्यू.
ओवरऑल इंटरव्यू 15% वेटेज, 85% आपका जाता है फेज 2 के लिए। ये आपकी टोटल ओवरऑल एग्जाम प्रोसीजर है। नाउ लेट अस लुक एट ईच फेज टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये आपका फेज 1 है। So in phase 1, paper 1, you could see general awareness, English language, quantitative aptitude, test of reasoning. Each one, like SEBI, has number of questions 25, 25, 25, 25, and even maximum marks also, and duration has been given 1 hour in total. The cutoff also is very similar to SEBI. सिर्फ 30% ही लाना है आपको पेपर 1 में। पेपर 2 में अगर आप देखते हो तो ये आपका थोड़ा सा एग्जॉस्टिव सिलेबस यहां पर मैंने दिखा दिया। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वही फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, which include sustainable development, poverty, inclusion, demographic, commerce and accountancy, management, finance and costing, Indian economy, global economy, 5-year plans. ये 50 questions for 100 marks एक घंटे में, and again 40% cut off, similar to SEBI. इसका मतलब the phase 1 is similar to SEBI and it is, yes, it is easy to moderate. ये level आपकी difficult नहीं है, आप इसको clear कर सकते हो. So what about the phase 2? Let us look at it. phase 2 अगर आप देखते हो तो ये आपका phase 2 है। मैंने पहले बताया कि पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, प्रेसी है, ऐसे है, कॉम्प्रिहेंशन है। टोटल आपका प्रेसी 35 मार्क्स के लिए, ऐसे 30 मार्क्स के लिए, कॉम्प्रिहेंशन 35 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 एक घंटे, एंड अगेन द कट ऑफ इज 30%। बट पेपर 1 में जैसे सेबी में 1/3 वेटेज होता है, वैसे ही आईएफएससी में 1/3 वेटेज है। हियर यू कैन सी इट क्लियरली। तो यहां पर जब आप 1/3 वेटेज देख रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट पेपर 2 इज इंपॉर्टेंट हियर। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन पेपर 2। आईएफएससी एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे हमने पहले ही देखे। ये कुछ आईएफएससी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब ये जो 50 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए 1 आवर, 40% इसका कट ऑफ एंड 2/3 इसका वेटेज। नाउ दीज अगेन वुड बी कैलकुलेटेड एंड मार्क्ड फ्रॉम द 100 मार्क्स, और इसका जो आपका ओवरऑल कट ऑफ आपका आएगा 30% यहां पर क्लियर करना पड़ेगा, 40% पेपर 2 में क्लियर करना पड़ेगा, एंड देन इसकी मेरिट लिस्ट लग के आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, राइट। दिस वाज रिलेटेड टू ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। इफ यू लुक एट व्हाट आर द हर्डल्स इन बिटवीन यू, ये है फेज 1 पेपर 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 पेपर 2। तो ये आपको सारी चीजें कवर करनी है। इफ यू सी एट फेज 1 कंप्लीटली, इट्स सिमिलर टू सेबी, इट इज डूएबल। पेपर 2 में डेफिनेटली फेज 2 के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, कंसिडरिंग दैट यस यहां का जो पेपर 2 है फेज 1 का, सारे टॉपिक्स यहां पर फिर से रेप्लिकेट नहीं हो रहे लाइक सेबी। सेबी में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स वाज रिपीटिंग इन योर फेज 2 पेपर 2, बट हियर इट इज नॉट सो। पेपर 2 में अलग ही आपको एक सिलेबस दिया है। सो दैट इज व्हाई हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कवर ऑल दिस टॉपिक्स। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द ओवरऑल कट ऑफ। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, क्या टारगेट करना पड़ेगा हमें, लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब आईएफएससी का डेटा हमारे पास है जस्ट लास्ट ईयर 2023 का, और आपका कट ऑफ जो निकल के आया है फेज 2 का, दैट इज 59.67 फॉर जनरल कैटेगरी। ये फेज 2 का कट ऑफ है, दैट इज क्लोज टू 60 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर 60 मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली लाइक सेबी ओनली, इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट, तो हम देखेंगे कि हमारा फेज 1 और फेज 2 में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। लेट अस लुक एट इट। सो ओवरऑल अगर आप फेज 2 और फेज 1 की अगर आप बात करो, तो फेज 1 इज वेरी क्लियर। पेपर 1 में 30% लाओ, पेपर 2 में 40% लाओ, यू डायरेक्टली गो टू फेज 2। फेज 2 में कट ऑफ हमने देख लिया, इट इज 60, राइट। सो देयरफॉर इट इज वेरी इसेंशियल कि पेपर 1 में एटलीस्ट आप 60 प्लस मार्क्स लाओ, और पेपर 2 में आप 70 to 75 प्लस मार्क्स लाओ बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। लेकिन 70 प्लस लाने पड़ेंगे, व्हाई? बिकॉज ओवरऑल 200 मार्क्स जब आप 100 में से निकालोगे, कंसिडरिंग 1/3 एंड 2/3 वेटेज, डेफिनेटली अगर आपको 60 कट ऑफ बीट करना है, आपको कंपल्सरीली यहां पर 70 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। देयरफॉर लेट अस लुक एट द सिलेबस एग्जॉस्टिवली कि इसको आप करना कैसे। तो पहली तो बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मैं ईएसआई नहीं कहूंगा। सो क्या क्या टॉपिक्स है इसमें देख लो। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड अलोंग विद दैट इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी मैंने यहीं पर लिया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम ऐसे सेपरेट पढ़ना, देयर इज नो लॉजिक इन दैट। रादर देन दैट, one domain, that is economy as a domain, if you keep it here, economy and social development, let us see what are the topics we have to cover. First are growth and development related topics related to measurement of growth, okay,
national income, per capita income, poverty alleviation, employment generation, sustainable development, environmental issues. Do you think where these topics are there? Yes, exactly. These are same topics from ESI. So RBI syllabus. Then social structure in India, multiculturalism, demographic trends, urbanization, migration, gender issues, social issue. Can I say that all this is from RBI? Yes, it is. तो यहां पर आपका RBI का सिमिलर आप देख सकते हो, सेम सिलेबस है. देन कम्स इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी. अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, क्लासिकल कीन्जियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शंस एक्सेट्रा. ये सारी चीजें आपको नहीं लगता इकोनॉमिक्स सेबी के सिलेबस से है? यस, इंडीड इट इज ट्रू. फिर बात करते हैं फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये थोड़े थोड़े से जो टॉपिक है, these are similar topics from the macro economy as well as finance syllabus from your RBI as well as from SEBI, isn't it? तो फिजिकल पॉलिसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी चीजें आपकी आरबीआई में कवर हुई है. तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो आपको मेजरली यहां पर 60% आपका सिलेबस आरबीआई का यहां पर आप देख सकते हो, विच इज ऑफ कोर्स फ्रॉम ESI also एंड फाइनेंस also, एंड थोड़ा सा जो माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट है वो थोड़ा सा सेबी का सिलेबस है. तो दोनों स्टूडेंट्स हु आर होपिंग टू फिल दिस application for IFSCA, there is a win-win situation for RBI students also and SEBI students also. अब बात करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की. Now this topic completely comes in your SEBI exam. तो ये आप डेफिनेटली SEBI के थ्रू कर सकते हो. लेकिन फिर से लेट अस लुक एट क्या क्या चीजें. अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर उन्होंने मेंशन किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन सिलेबस ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑफ सेबी एंड IFSCA. लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ये तो कॉमन चीजें है, तो ये आप एक साथ कर सकते हो. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बायबैक सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, वो आपको जरूर करने पड़ेंगे. देन कम्स मैनेजमेंट सिलेबस. सो बिफोर जंपिंग टू द मैनेजमेंट सिलेबस एंड बिफोर actually discussing more about the syllabus or per se, I'll also like to show you the overall exam timetable for 60 days what we have made. तो ये 60 days का टाइम टेबल जो हमने बनाया है, it is a mix of RBI as well as SEBI, for RBI and SEBI students, so that they can prepare for your IFSCA exam. और खास करके हमने क्या किया है, whatever IFSCA related topics are there, here you could see IFSCA related topics, those topics definitely we have also kept it. If you prepare for 6 hours daily for this 60 days, डेफिनेटली आपका सिलेबस कवर हो सकता है, डेफिनेटली. एंड कंसिडरिंग करंट अफेयर्स ऑल्सो, तो ये शीट भी डेफिनेटली विल गेट दिस शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देख सकते हो. कंसिडरिंग दैट, एक बार आपको कोर्स भी दिखा देता हूं, सो दैट यू विल डेफिनेटली गेट टू नो मोर अबाउट द कोर्स. एज यू नो दैट ईस्टर सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन, तो 40% यहीं पर है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू गो टू द रेगुलेटरी बॉडीज, और अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हो तो यू विल गेट टू नो दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड IFSCA कोर्सेज फॉर यू. लर्न पैक ऑल्सो हैज बीन लॉन्च्ड एंड अ कंप्लीट कोर्स हैज बीन ऑल्सो लॉन्च्ड. अगर आप कंप्लीट कोर्स में जाते हो तो व्हाट आर द थिंग्स यू गेट? यस, हियर यू विल अंडरस्टैंड 150+ वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू all the topics which are included in the syllabus of IFSCA, special sessions English answer writing के लिए, sectional and mock test also for all the topics, no detailed notes also, and validity phase 2 एग्जाम तक है. ये तो आपका कंप्लीट कोर्स हो गया, ठीक है. यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. कंप्लीट फेज 1 एंड फेज 2 सिलेबस कवरेज के लिए 60 दिन में आपका सिलेबस कवर. अब बात करते हैं लर्न पैक के लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर नोट्स, who are looking for just resources, तो आपको you know the top notch quality content of Oliveboard for mock test and notes, आप LearnPack में जा सकते हो. Go to the LearnPack. In LearnPack you will definitely get to go to resources, and in resources you can go and check out yes
in resources you can go and check out the IFSCA notes as well as mocks. So here IFSCA notes already have been uploaded according to the syllabus. सारे notes यहाँ पर ready है, ठीक है. आप जाकर individual जो IFSCA के यहाँ पर topics है, IFSCA regulations, important committees of IFSCA, then overall insurance, everything has been covered here. So definitely अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द लर्न पैक ऑल्सो, जहां पर नोट्स, मॉक टेस्ट, सारे रिसोर्सेस आपको एक ही जगह पर अवेलेबल है. नाउ लेट अस गेट बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. यस, हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजमेंट सिलेबस. मैनेजमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज समवॉट सिमिलर ओनली टू सेबी. तो यहां पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट का इतना ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा ही नहीं. तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर सिमिलर है. तो मैं तो कहूंगा कि आरबीआई, सेबी और आईएफएससीए में मैनेजमेंट इट्स वेरी डुएबल पार्ट विच इज सिमिलर. देन वी विल टॉक अबाउट फाइनेंस. तो फाइनेंस के अगर आप टॉपिक्स देखोगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स, रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, ये भी आरबीआई के ही बहुत सारे टॉपिक्स है. जनरल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सारा आरबीआई और सेबी के ही बहुत सारे टॉपिक्स है. डेफिनेटली this IFSCA finance syllabus will not be so close to SEBI syllabus but more importantly to RBI syllabus. लगता है ये पूरा का पूरा RBI से ही उठाया उन्होंने, ठीक है. तो a good deal for RBI students, also for SEBI students also. ज्यादा इतनी मतलब देखने की जरूरत नहीं है. This financial market parts, financial markets, ये जो पार्ट है वो SEBI से उठाया उन्होंने, ठीक है. सो यहाँ वहां से उन्होंने टॉपिक्स उठाए एंड दे हैव मेड दिस फेज टू सिलेबस. देन कम्स कॉस्टिंग पार्ट. अब कॉस्टिंग पार्ट में अगर आप देखते हो तो अगेन द सेम थिंग, इट हैज बीन कंप्लीटली कॉपीड फ्रॉम द सेबी. सो ये यहां पर सेबी का पार्ट है कंप्लीटली, तो ये आप कवर कर सकते हो. और फिर अगर आप आते हो कुछ एक्सेप्शनल जो टॉपिक्स ऐड किए उन्होंने, जैसे कि जीए, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 इयर्स प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स, फाइनेंशियल ईयर्स, ये कुछ नहीं है, ये आपका जीए है जो आरबीआई का है, सेबी का है. सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स, तो पीआईबी गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल अपडेट्स, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है. सो इन ऑल इफ यू सी दिस इज द कंप्लीट एग्जॉस्टिव सिलेबस फॉर योर IFSCA grade A 2024, which is on the lines of SEBI exam pattern, and the syllabus, whatever micro topics are there, subtopics are there, those have been cherry picked from RBI as well as SEBI. I hope you understand. अब बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या है. पेपर 1 में सिंपली मैंने बताया ऐसे है, प्रेसी है और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. डेफिनेटली उसी लाइंस पे जिस लाइन पे सेबी है. फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में मैंने पहले ही कहा ओनली सर्टन टॉपिक्स आर देयर सच एज IFSCA एक्ट, IFSCA, देन गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये कुछ टॉपिक्स है. देन बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स है. सो हियर look at it, structure and functions of banking institutions, function of reserve bank, banking system in India, recent development in global financial systems, non-banking systems, digital payments and role of technology in banking and finance. Do you think ये syllabus कहीं पर देखा है जैसे लग रहा है? Yes, this again syllabus is similar to the topics of RBI finance. RBI में जो finance है वही ये topics है. आपने regulatory bodies, ये पूरा आपका second chapter ही है जो आप cover करते हो RBI में. तो यहां पर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये भी आप आरबीआई में कवर करते हो. सो इन दिस वे दिस बैंकिंग पार्ट जो आपका फेज 2 पेपर 2 में आता है, ये मोस्टली पूरा का पूरा बैंकिंग का पार्ट आरबीआई का है. फिर कैपिटल मार्केट, अब ये चीज जो है वो थोड़ी थोड़ी सेबी से सिमिलर आप देख सकते हो. अगेन फ्रॉम द फाइनेंस सिलेबस इन सेबी ऑल्सो एंड आरबीआई ऑल्सो. हाउ आई एम सेइंग दिस, रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, फॉरेक्स वगैरह, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड स्पॉट डेरिवेटिव मार्केट ऑफ प्रेशियस मेटल, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. सो दिस इज अगेन फ्रॉम फाइनेंस सिलेबस ओनली, आरबीआई, सेबी. फिर बात करते हैं इंश्योरेंस. अब ये एक एडिशनल टॉपिक है फॉर योर फेज 2, ठीक है. ये फेज 2 का है आपका एडिशनल टॉपिक. हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लीगल फाउंडेशंस ऑफ इंश्योरेंस एंड मेनी मच मोर टॉपिक्स, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरर्स, इंश्योरेंस लाइंस एंड प्रोडक्ट्स. देखो ये पूरे एग्जॉस्टिव टॉपिक्स है जो ना तो आरबीआई में है ना तो सेबी में है. तो ये आपको सेपरेटली फेज 2 पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन कम्स योर पेंशन सेक्टर. दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल पार्ट विच इज नीदर देयर इन आरबीआई नीदर इन सेबी.
तो स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, एन्युइटी प्लान्स एंड बेसिक इन्वेस्टमेंट, सम पार्ट्स आर कवर्ड इन योर पीआईबी और मे बी इन योर गवर्नमेंट स्कीम्स, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि दिस पोर्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर आरबीआई सेबी विच इज नॉट एग्जॉस्टिवली मेंशन देयर। तो अब ओवरऑल प्रिपरेशन कैसा होगा हमारा? वी ऑल नो लास्ट ईयर कट ऑफ इज 59. Still, if we have 80% accuracy in our phase 2 paper 2, then we can still score 65 to 75 marks, and then only it would be possible for us to clear the cutoff. So इसीलिए how should you target? Simple, number of questions easy जो 50 questions रहेंगे, ठीक है, उसमें से 5 या 10 तो डिफिकल्ट रहेंगे, तो आप टारगेट करो 30 to 35 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस जो इजी और मॉडरेट लेवल के हैं और जो आपको बहुत अच्छे से 65-75 मार्क्स दे दे, एंड देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली गो इनटू मेरिट आल्सो एंड गेट एन इंटरव्यू कॉल। तो यही है, इस फेज 1 और फेज 2 टफ। फेज 1 तो इजी है क्योंकि 30% पेपर 1 और 40% पेपर 2 फेज 1 में तो आप आराम से लाओगे। बात बस फेज 2 पेपर 2 की है, क्योंकि पेपर 1 इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल स्कोर अ लॉट। पेपर 2 जो फेज 2 का है, विच आर ऑल द न्यू टॉपिक्स विच वी डिस्कस्ड, क्या क्या, आईएफएससीए रिलेटेड टॉपिक्स, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर, ये आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, एंड अगेन यू हैव टू डू इट एग्जॉस्टिवली बिकॉज दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी प्रिपरेशन। I hope that you got an idea that how we can definitely prepare for this particular exam. So I hope that you can start your preparation for SEBI, RBI as well as IFSCA exam. अब बात करते हैं इस टाइम टेबल के बारे में। So it completely, if you go through this particular timetable, पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको यहां पर मिल जाएगा in the description box. You download it. All the topics for pension, insurance, whatever are there, वो मैंने सारे यहां पर आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स को यहां पर मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। यू कैन जस्ट पिक आउट दोस टॉपिक्स एंड यू कैन डू इट। यू कुड सी सारा जो सिलेबस है, वी हैव ट्राइड टू फिनिश इट विद इन 60-64 days. सो इट इज अ 60-day टाइम टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आपका आईएफएससीए का पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।